Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here, the teacher who is standing in front of you has given the interview of pilot. And don't underestimate if I have given the interview of pilot, then definitely if I will guide you, you can also give the interview of pilot. If you are going to prepare for this examination, definitely you can become a pilot because at that moment my English was not good. Just because of that, I couldn't get selection over there. Otherwise, if my English, I must not be of EP board, I must be student of CBSE board, then definitely my English must be good and I must be selected there. And you can also get selection when you will study English language with me. And I always used to teach English language bilingually. मैं हमेशा इंग्लिश भाषा bilingually पढ़ाता हूँ so that ताकि the student जो विद्यार्थी they don't have too much words, बस ज़्यादा शब्द नहीं है in English language, अंग्रेजी भाषा में they can gather too much words, वे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इकट्ठा कर सकें in their mind अपने दिमाग में, and they can easily speak English language in front of anyone, and they can sit in big examination, big interview with better performance. So here I'm here to teach you the English language, and in front of me, see in the on backside, my channel name is written Study with the Master. Please subscribe this channel and share this channel with your friends, and please motivate me when I do something better for you. जब मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं, प्लीज मोटिवेट मी एंड डेफिनेटली एंड वास्तव में आई फील मैं सोचता हूं इन एवरी स्कूल एंड कॉलेज फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 तक हर स्कूल और कॉलेज में इन इंडिया भारत में एवरीबडी इज स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, सभी इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में. बट दैट इज रॉन्ग, ये गलत है. वी शुड लर्न इट एज अ लैंग्वेज. हमें इसको एक विषय न होकर भाषा के रूप में पढ़ना चाहिए सो दैट ताकि इन फ्यूचर भविष्य में वी कैन क्लियर सम बिग एग्जामिनेशन, ताकि हम बड़ी परीक्षाएं पास करें. एंड वी इफ वी कांट डू दैट, यदि हम ऐसा न कर पाए इवन देन तब भी वी कैन वर्क एट इन मल्टीनेशनल कंपनीज बाय नोइंग दिस लैंग्वेज. इस भाषा को जानकर मल्टीनेशनल कंपनीज में हम कार्य कर सकें, जो विश्व स्तरीय कंपनीज होती हैं उनमें हम कार्य कर सकें. एंड वी कैन शो अवर टैलेंट ओवर देयर, और अपनी प्रतिभा को वहां दिखा सकें. आई नो इट वेल, मैं ये जानता हूं. देर आर नो एनी वन हु इज हार्ड वर्कर एक्सेप्ट द पुअर पीपल. पुअर पीपल के अलावा कठिन परिश्रम करने वाला कोई नहीं होता है. पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर 8 hours इन द फील्ड. 8 hours घर में खेत में काम करते हैं. इवन देन दे आर गेटिंग अ फ्यू अमाउंट ऑफ सैलरी, बहुत कम मात्रा में सैलरी प्राप्त कर रहे हैं. बट इफ देयर सिबलिंग्स, देयर यंगर्स विल टेक एजुकेशन, यदि उनके यंगर्स, उनके सिबलिंग शिक्षा लेंगे इन फ्यूचर भविष्य में, दे कैन चेंज द पेस ऑफ देयर फैमिली. अपने घर की, परिवार की जो प्रगति है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं. एंड दे कम आउट फ्रॉम लोअर क्लास फैमिली टू मिडिल क्लास फैमिली. वे आ सकते हैं एंड इन फ्यूचर दे कैन बिकम द टॉप level people of the world. Okay, so with these words I'm telling you, if you want to earn too much amount of money, then learn English language. Definitely English is the language which is going to give you everything. Everybody, those are big, they are learning is इसे वे सीख रहे हैं, and you here are just watching that. Oh, what the need to learn English language? No dear, every big person is learning English language, and here I am teaching you freely. You feel that I'm bad? No. In future, when I will start to teach properly, when I will come properly to you, then you will see that which kind of talent I am providing to you. I'm providing really a great talent to you. If you can inculcate this talent inside you, definitely you are going to become great personality. So there, the first question is here present in front of you, and I am going to solve this question. I am tired. This is not tired. This is tired. This is tired. Okay? This is tired. I am tired. मैं थका हूँ. As जैसा कि I am working, मैं कार्य कर रहा था since 7 o'clock. ये जो टाइम दे दिया, ये टाइम दे दिया. टाइम किस में रहता, किस टेंस में रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
और फ्यूचर परफेक्ट कन्वर्सेंस। सभी परफेक्ट कन्वर्सेंस में टाइम दिया जाता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब इसकी कैसी होती है? आई हैव बीन वर्किंग। सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई हैव बीन वर्किंग। इट मीन्स इन सेक्शन सी देयर इज मिस्टेक। सो दीज आर द क्वेश्चन आर स्पॉटिंग एरर्स। किस जगह पे गलती है वैसे प्रश्न है, एंड वी विल सॉल्व देम, और हम इन्हें हल करेंगे। वी विल आल्सो लर्न द मीनिंग ऑफ दीज ऑल सेंटेंसेस। इन वाक्यों की का अर्थ भी हम जानेंगे। सो आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। आई जैसा कि आई हैव बीन वर्किंग, मैं कार्य करता रहा हूँ। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से, इन द मॉर्निंग, सुबह में। सो ओके, सो इन दिस वे यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। एंड आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, इफ यू वांट्स टू ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द कंट्री, यदि आप देश में क्रांति लाना चाहते हैं, जस्ट 2 communities मस्ट कम फॉरवर्ड। सिर्फ 2 समुदाय सामने आए, द स्टूडेंट एंड द टीचर्स। If these 2 communities will do their best for learning English language, definitely one day would come when we, the teachers, may do something better for making India at a great extent, from where we can see that the people of the world will take visa to come here, to learn here, to work here, and to do their best in India. And as our Modi ji has told that Britishers, Americans will take visa, definitely that day is going to come when we will make world class institute, we will make world class medical facilities. So these all peoples of world sides will come here to talk with us, and definitely the student of India will do their best to make India like that. And I'm here till I'm live. Why I'm so arrogant? You can say that. I always used to say like this. मैं हमेशा ऐसा करता रहता हूँ. Do you feel like why I'm telling you? Because I am really love my country. वास्तव में अपने देश से प्रेम करता हूँ. And I was really a great lover of my country. और मैं अपने देश का बहुत बड़ा प्रेमी रहा हूँ. You know why? Because I have been aspirant of National Defense Academy. मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी का एस्पिरेंट रहा हूँ. एंड आई अपियर फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए अपियर किया. ऑल दो कुडंट क्वालिफाई, बट स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा हूँ, फॉर मेकिंग इंडिया रियली द ग्रेट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. देश को दुनिया का एक महान देश बनाने के लिए. एंड दैट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, और ये संभव होने जा रहा है when we will provide education to everyone. Every classes of India will take proper education, and they will do their best for the development of the country. So here I am telling you, if we the Indians are trying to make India better, then definitely a day would come when we will do something better for the development of India. So here first question is end, and we are going for the next one. So next question is here, second question is here. Okay, here is the second question. First I have to fix it, right? Second question is, when it was dark, जब अंधेरा था, they decided to put at an inn. उन्होंने निर्णय लिया ठहरना. ठहरने की इंग्लिश होती है put up at. ठहरने की इंग्लिश होती है put up at. और किसमें ठहरने की? इन. ये जो इन है INN, इसका अर्थ होता है सराय. सराय, सराय जहां पे ठहरने का समय पुराने जमाने में हुआ था. एज रेस्टोरेंट, होटल, मोटल इज प्रेजेंट एरा में है. अर्लियर इन बिफोर 50 years ago, सराय वर देयर. सराय वर देयर. सराय वहां हुआ करती थी. वेर पीपल व्हेन दे गो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब लोग लंबी दूरी पे जाते थे, दे स्टे देयर, वे यहाँ ठहरते थे. तो इन का अर्थ होता है सराय, और ठहरने की इंग्लिश होती है पुट अप एट. सो द राइट आंसर इज बी. तो बी सेक्शन में गलती की. ओके, वी शुड सॉल्व इट and go back, get the third one. Okay, the third question is, here is some typing mistake. The sentence is starting from here. We should, okay, we should be bound. हमें बाधित होना चाहिए by a code of conduct. एक कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, मतलब एक जो जीने का तरीका होता है, जो नियम कानून होता है, उसके अनुसार हमें बंधे होना चाहिए. This is really right. This is really true. If we are Indians, those are going to rule India. Those are going to give the education. I, as a teacher, मैं एक अध्यापक के रूप में
आई नो इट वेल, मैं ये जानता हूँ. देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू मी. कुछ मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाते हैं. एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज, और ये जो उत्तरदायित्व है ये कहते हैं कि आई मस्ट बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार होना चाहिए. आई मस्ट स्पीक द ट्रूथ, मुझे सत्य बोलना चाहिए. आई मस्ट ड्रीम बिग, मुझे बड़ा स्वप्न देखना चाहिए. आई मस्ट बी पॉजिटिव, मुझे सदैव धनात्मक रहना चाहिए. आई मस्ट बी काइंड, मुझे दयालु रहना चाहिए. आई मस्ट बी हार्ड वर्किंग, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए. आई मस्ट हम स्टे हम्बल, मुझे नम्र बने रहने चाहिए. एंड वन थिंग मोर, आई मस्ट कीप स्माइलिंग इवन एवरी प्रॉब्लम इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी. और मेरे सामने सभी जो समस्याएं आ रही हैं तभी मुझे क्या करना चाहिए? आई मस्ट कीप ऑन स्माइलिंग, मुझे हंसते रहना चाहिए. इफ दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, यदि यह मेरे साथ हो रहा है, इट मीन्स आई एम लिविंग अ वेरी बेटर लाइफ. So dear, this is the question which we solve here. The third question was what we should be bound. हमें बधे होने चाहिए by a code of conduct, एक नियम कानून से. सही है गलत? देखिए, is it not, क्या ऐसा नहीं है? तो इसमें हमने देखा we saw in this that should be जो है, should जो जिसका प्रयोग है, अगर यह क्वेश्चन टाइप के प्रथम में है तो क्वेश्चन टाइप के सेकंड भाग में भी यही होना चाहिए. तो बी आंसर सही है. शुड, शुडंट बी, क्या हमें ऐसा नहीं होना चाहिए? तो द आंसर इज ए सेक्शन, राइट. वी आर गोइंग टू स्क्रॉल इट एंड वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, fourth question is here and we will talk about fourth question. A highly improved variety of seeds. A highly improved, a highly पूर्ण रूप से, बहुत ज्यादा तरीके से, इम्प्रूव सुधारी गई. वैरायटी मतलब जो अन्य अन्य चीजें होती हैं, ये विविध रूप होते हैं. ऑफ सीड्स, सीड्स बीजों के. इज अवेलेबल, इज अवेलेबल, इज मतलब सही है. इज क्यों सही है? कि a हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात किया जा रहा है. तो ये इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सब्जेक्ट का, वो सिंगुलर का. तो इसका सही है, इसलिए आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट. अवेलेबल, उपलब्ध है टू द फार्मर्स, किसानों के लिए. दीज डे, इन दिनों, इन दिनों, ठीक है. अ हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, एक पूर्ण रूप से, एक मुख्यतः इम्प्रूव सुधारी गई वैरायटीज में विविध ऑफ सीड्स मतलब बीजों की, इज अवेलेबल उपलब्ध है टू द फार्मर्स, किसानों को. these days, in दिनों. So this is the right way to learn English language, and I know it very well that the student of India can make their best effort to make India the golden bird once again. We are going to make golden birds once again. But how do you know that? By making India a knowledgeable state, knowledgeable country. 100% education system must be here. 100% educated people must be, and 100% people must live in in out beyond the poverty. We should come out poverty. Everybody must come out poverty, and that must be possible when our country must be ruled strictly. We should follow the rules and regulation very well. And I am a teacher. I must feel that my responsibilities goes that I must invocate whole country very well. इनोकेट मीन्स सगाना या उद्घोषण, उनको उकसाना. उनको उठो, डोंट स्लीप टू मच, ज्यादा मत सो. गेट अप सो अर्ली, बहुत जल्दी उठो. एंड वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो. फॉर योर कंट्री, अपने देश के लिए. फॉर योर सेल्फ, अपने लिए. फर्स्ट डू फॉर योर सेल्फ, पहले अपने लिए करो. एंड डेफिनेटली द कंट्री विल स्टार्ट टू डू समथिंग फॉर यू. और वास्तव में देश आपके लिए करना जा रहा है. द आर्मीज आर प्रोटेक्टिंग अस, जो सेनाएं हैं हमें सेवा कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं. देन हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू अस, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व हमारे जाता है. वी शुड आल्सो वर्क समथिंग बेटर फॉर देम एंड देयर फैमिली. उनके उनके लिए और उनके परिवार के लिए हमें अच्छा करना है. एंड वी शुड रियली स्टार्ट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन द कंट्री. और हमें अपने देश में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट को रियली वास्तव में उठाना होगा. या पनपाना होगा, या इंस्ट्रक्ट करना होगा, या कंस्ट्रक्ट करना होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा. सो दैट ताकि द डे कम, दिन आए व्हेन वी सी, हम देख सकें इन द इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र के रूप में, अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, वी स्टडी द फोर्थ क्वेश्चन.
The fifth question is here. Okay, I'm going back. Fifth question is here. The boy told his teacher. बच्चे ने अपने अध्यापक से कहा. बच्चे ने अपने अध्यापक से कहा. क्या कहा? The boy told his teacher to explain the passage. बच्चे ने अपने अध्यापक से पूछा to explain the passage. पैसेज एक्सप्लेन करें. तो यहाँ पे पूछा, ask रही चीज थी. This must be right. तो आंसर मस्ट बी ए. द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा, हिज टीचर, अपने अध्यापक से, टू एक्सप्लेन. और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ दैट करके चीजें नहीं आ रही हैं, इसलिए आस्क का प्रयोग होगा. told that his teacher that. Okay, that's why we are using ask over here. Okay, the answer is the boy asked his teacher to explain the passage, right? In this way we studied 5 questions, and I'm going to end the video, and I'm telling you that, dear, if you are working very hard, then definitely India is going to become great country. Okay, with these words I'm going to end my videos. Thank you very much.